Ever wondered how much safer your work at height operations could be? Imagine a world where every potential hazard is detected before it becomes a problem. Meet Tracker AI's smart PTZ camera system. This isn't just any camera, it's a game changer in work at height safety. Safety is paramount, right? It's the foundation of a productive and happy workforce. Despite stringent regulations, accidents still happen. Traditional methods often fall short in preventing these incidents. Enter Tracker AI's Smart PTZ. This advanced system is designed to fill the gaps left by outdated safety measures. Tracker Smart PTZ cameras deliver unmatched oversight so you can spot hazards before they become accidents. Offering 24/7 monitoring, it detects work at height safety hazards instantly, no matter the time of day or night. Think about it. Real-time monitoring, automated alerts, and even fall detection. It's like having a safety manager who never blinks. Real-time alerts trigger immediate action, ensuring that potential dangers are addressed before they escalate. Automated surveillance significantly reduces human error, making your work site safer and more efficient. It even detects PPE and welding work compliance, ensuring that all workers are properly equipped. Ensure every worker goes home safe. That's the ultimate goal, isn't it? Ready to elevate safety? Stay safe, stay smart. With Tracker AI, you're not just upgrading your equipment, you're upgrading your entire safety culture. The Tracker Smart PTZ camera features advanced AI algorithms that are constantly learning and adapting to new safety challenges. With 360-degree rotation and high-definition video, it covers every angle, leaving no blind spots. You can decide which areas to cover, what to detect in each area through a simple online procedure without ever leaving your seat. Through the setup, you can monitor what is happening on the ground in real time remotely. In a recent case study, a manufacturing plant reduced accidents by 40% after implementing our system. Features include night vision, advanced monitoring for PPEs, work at height and welding activities, including real-time analytics, making it a comprehensive safety solution. Our team of experts ensures the highest quality and reliability, constantly innovating to meet your safety needs. Plus, our dedicated support team is here to assist you 24/7, ensuring that you get the most out of your investment. Join the revolution in safety with Tracker AI's smart PTZ camera system. It's time to take your safety measures to the next level. Visit tracker.live to learn more and get started today. Together, we can create a safer, smarter future for everyone. Welcome to another episode of Hackla Podcast, where we dive deep into the science, system, and people that keep our workplace safe. In today's episode, we are unpacking a topic that's often overlooked, but it's absolutely essential: ergonomics in the safety industry. Ergonomics isn't just about comfortable office chairs, it's a critical part of preventing injuries, improving efficiency, and designing workplaces that truly work for the people working in them. Whether you are in construction, manufacturing, healthcare, or logistics, this conversation is for you. Joining us today is Mr. Vivek Asthana, and we are going to explore what ergonomics really mean and how it's applied in safety and why every business should care about it. Thank you, Vivek sir, for joining us again. Hey, thank you, Amber. How are you? So Doing hope fine, sir. How काफी are you, sir? समय लंबे समय बाद मेरे ख्याल से शायद 2 महीने ऑलमोस्ट. Yes, sir. Okay, Yes. So, sir, before we start our conversation, can you please introduce yourself for some new people, new audience? sure. Uh, so once again, good evening, everyone. So uh, basically, I possess around more than 30 years experience in API and pharmaceutical industry in various functions like manufacturing, sustainability, documentation, and others. So I started my career with Ravid Ranbaxy.
Okay, and worked there almost in production. I worked around for 20 years. Then I switched to EHS and sustainability, and really I am enjoying my job this time. So, but if I talk about my qualifications, so I am master in chemistry. I did MBA in business administration with a specialization in operations, and I did this uh, diploma in industrial safety from Reason Paper Institute, Kanpur. Then I did I am AFOH from British Occupational Hygiene Society in industrial hygiene, and I am lead auditor of ISO 14001 and 45,000 with systems. Okay, so I'm still working. I am associated with the Symbiotech Pharma Lab. So we are manufacturing steroids and hormones in the API and injectable forms. Okay, so on family front, I am blessed with a son. So my wife Good. is she is taking care of my family. Yeah, Okay, sir. So let's get started. So let's start with the basics. So how would you define ergonomics, especially in the context of workplace safety? yeah. Amber, actually, ergonomics basically is related to design of your workstation. Right. See, if your workplace and workstation is not designed safely for workers, and where workers are bound to work in awkward position, awkward posture, or they are doing same work repeatedly, correct? Or say for staff, the persons who are working in offices, so they are working on computer for a long time. So what will happen? So all these things will give rise to fatigue and musculoskeletal disorder, or stress, or strain, or internal injury. So, what is stress? So stress is that is external demand, that is physical, mental, और environmental, based on human body. जितना आप कर सकते हैं काम उससे ज्यादा अगर आप अपनी बॉडी से काम ले रहे हो, that will lead to stress. और अगेन इस स्ट्रेस की पोजीशन में इफ यू आर वर्किंग कंटिन्यू यू आर वर्किंग, so then this will convert into strain and bodily injury to your body, correct? So Right. uh, ergonomics deal all with these things, correct? Basically musculoskeletal disorder, cognitive strain like mental fatigue, reduced concentration, so emotional burnout also. So Amar, many times have you ever feel that कभी आप सो करके उठ रहे हैं सुबह, सब कुछ ठीक ठाक है, आप अच्छी तरह से सोए हैं, एक अच्छी कोई टेंशन और विदाउट प्रेशर, और सुबह उठ करके आपका सडनली आप फील करते हो कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको हल्का हल्का सर दर्द है, होता Right. है ना? So you can relate this thing with the ergonomics at home. This may be Okay. because of your posture, because of your quality of your cushion. Maybe आपका बॉडी posture उस समय ठीक ना हो, आपकी ये पिलो पिलो आपके ठीक नहीं Right. लगाए हो, करेक्ट? So basically physical as well as emotional or mental fatigue. So all these things, ergonomics deals with all these things, correct? So basically, ergonomics is a science of designing and arranging the things so that people can easily use them safely. Okay, and the aim of ergonomics is to improve interaction between people and their work environment, right? And focus Got it. is Yes. always on comfort of worker, efficiency, productivity, and prevent injury, workplace injury. Correct. So, basic in simple terms,
So you can say that ergonomic is about fitting the job to person. मतलब एक जॉब में पर्सन फिट हो, जॉब जो पर्सन के लिए बना हो, कोई भी आदमी कोई भी पर्सन उसमें आसानी से काम कर सके उस जॉब को, रादर देन कि हम फोर्स करें कि भाई तू वर्कर उस काम को करे। करेक्ट ना? मैं बहुत इसको एक इस प्रिंसिपल को हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिटिंग द Right. जॉब टू पर्सन रादर देन फोर्सिंग द पर्सन टू फिट इन द जॉब। सो दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। करेक्ट। तो एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। इंडिया में हमारे यहाँ एर्गोनॉमिक्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा, यूएस में, अदर कंट्रीज में देते हैं। इंडिया में ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन देना चाहिए बिकॉज अभी जो मल्टीनेशनल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बेसिकली Right. ड्यूरिंग 2014 आई थिंक, so there was a study in Europe regarding these workplace injuries. So it was found that 33.2% bodily injuries were related to ergonomics. Yes. Okay. और वहां पर वो Right. लोग रिपोर्ट But भी करते हैं। राइट, वो रिपोर्ट भी करते हैं। right. हमारे यहाँ इस चीज को महसूस ही नहीं होता कि मेरे बैक पेन ऑफिस में बैठने से हुआ है, या मेरे नेक पेन है जो इंजरी हुआ है, ये मेरे वर्क प्लेस पर ये डिसऑर्डर मेरे को हुआ है। राइट। सो Right. बेसिकली ergonomics covers your workplace design. Basically, see the your desk height, your chair support, मॉनिटर पोजीशन कैसा है आपका, उसको देखना है। आपके टूल्स का डिजाइन कैसा है, जो बार बार आपको कई बारी वर्कर को टूल्स को अपना रिस्ट को मूव करना होता है, तो कंफर्टेबल है या नहीं, उसमें स्ट्रेन तो नहीं है यहाँ पर। तो टूल्स डिजाइन को भी एर्गोनॉमिक्स कवर करता है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन मैंने बताया। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हम लोग को ये देखना होता है, आर वी यूजिंग यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स, रेडिएशन फ्री स्क्रीन। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपको कंप्यूटर में घुस करके ढूंढना ना पड़े चीजों को, बहुत ज्यादा वर्क ना करना पड़े। राइट, आपने जस्ट एक क्लिक किया और आपके सामने चीजें हैं। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इट शुड बी इम्प्रूव्ड। एंड फिजिकल एर्गोनॉमिक्स मीन्स द पोस्चर ऑफ वर्कर, किस पोस्चर में वर्कर काम कर रहा है, रिपीटेटिव मोशन, बार बार सेम जॉब को वो कर रहा है एक ही पोजीशन में खड़ा होकर के, या ओवर हाइट का कोई जॉब है, बार बार ऊपर से उठा करके किसी चीज को करना। देखा हुआ आपने इलेक्ट्रिशियन जैसे ऊपर कंधों के ऊपर से जो काम करता है। करेक्ट है। सो दैट इज फिजिकल एर्गोनॉमिक्स, लिफ्टिंग टेक्निक्स, वेट को उठाना। Yes. Correct. So this is physical ergonomics, and apart from this, cognitive ergonomics means mental workload. ये भी देखा जाता है कि मेंटल वर्कलोड, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा आपको इस तरह का इमोशनली और मेंटली प्रेशराइज तो नहीं है वर्क प्लेस पर, जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। दैट इज कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स कहते हैं इसको, है ना। तो आप अपने इन सब चीज़ों से को डील करने के लिए किस तरह से आप अपना वर्क शेड्यूल को सेट करते हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद वर्कर्स, हाउ डू यू ट्रेन योर वर्कर्स। करेक्ट। सो टीम का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह जॉब रोटेशन है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स। करेक्ट। सो एर्गोनॉमिक्स covers all these things, right? Yes. Okay. So, sir, like you very eloquently described about ergonomics in the workplace, what are some of the common injuries or risks that ergonomics helps prevent? Okay. So, Amber, basically, before proceeding further, I would like to tell you about musculoskeletal system. पहले हमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझना होगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे इंजरीज को। राइट। सो व्हाट इज दैट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम? यू नो व्हाट इज स्केलेटन? कंकाल। ओके। सो योर skeleton provides a framework to our body, and skeleton protects our vital organs like liver, heart,
lungs, kidneys. Okay, and this skeleton provides movements through joints. Correct. Skeleton movements जो है हमारा joints को उसके थ्रू मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन्स को. राइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दिस स्केल्टन थोड़ा सा अगर अंदर कुछ कंफ्यूजन लगे तो मेरे से पूछ लेना इसमें. So basically, Sure. this skeleton needs ligaments, tendons, and muscles. Three elements: ligament, tendons, and muscles to become functional. And altogether, these four things these are considered as musculoskeletal system. Your skeleton, ligament, tendon, and muscles. Muscles तो आपको मालूम है क्या होता है muscles? जिम में जाकर के हम लोग मसल्स बनाते हैं. बेसिकली मसल्स जो है सबसे ज्यादा एनर्जी मसल्स बर्न करता है. राइट. सो मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स वाया टेंडन्स. मसल्स जो बोन से अटैच होती है ना, वो एक यू कैन से टेंडन आर अ थिक फाइब्रस कॉर्ड, वेरी थिक फाइब्रस कॉर्ड दैट अटैच मसल टू बोन. मसल्स जो बोन से अटैच होती है वो टेंडन के थ्रू होता है. Tendons. करेक्ट. वेरी डेलिकेटेड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, फाइब्रस होता है, एक कॉर्ड की तरह काम करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है. Right. एंड वेयर इज लिगामेंट फॉर सुना होगा टर्म के एक्सीडेंट हो गया, लिगामेंट डैमेज हो गया. सो लिगामेंट बेसिकली दिस अटैच बोन टू बोन, बोन से बोन को जो अटैच करता है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट. करेक्ट. मसल्स, मसल्स को जो बोन से अटैच करता है वो टेंडन. लिगामेंट है बोन से बोन को अटैच करता है. तो ऑल दिस सिस्टम इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. राइट. सो नाउ आई कम टू द योर क्वेश्चन. सो बेसिकली इन और होता क्या है, व्हेन योर वर्क प्लेस इज नॉट डिजाइन properly and you are working in awkward positions, okay, and sitting long time on your seat, and computer is not, your desk is not meeting your comfort, okay. So in that case you may suffer with musculoskeletal disorder. Correct. So if you have a, if any worker or any person uh, is suffering from musculoskeletal disorder, so he may have some symptoms like pain, discomfort, numbness, sunpan, loss in motion, stiff joints, burning sensation in arms and other portions, okay, swelling, tingling, inflammation. So these are the common symptoms. And the poor ergonomics, it affects muscles, nerves, tendons, joints, spinal disc. These are, sorry, right. So basically, there are some disorders like carpal tunnel syndrome. So what is carpal tunnel syndrome? So if you are working with your this wrist, and your wrist movement is not frequent, and it is not you can say it is under stress or strain. So what happens, there is a nerve that is called median nerve. Okay, if you are for long time working on your computer and just pressing this mouse, so what will happen, this median nerve will compressed. So as a result of compression, you may feel numbness, pain in this arm, okay, and tingling sensation, weakness, इससे काम नहीं हो रहा. So that is called Right. carpal tunnel syndrome, right? So this is first thing. No, it is most common thing that happens with people at workplace. Next thing is it is called tendonitis. टेंडोनाइटिस अब रिलेटेड टू टेंडन, जो मैंने बताया था, टेंडन जो मसल्स को बोन से आपको कॉर्ड, फाइब्रस कॉर्ड जो आपको कनेक्ट कर रही है, सो टेंडोनाइटिस होता है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव मोशन एंड रिपीटेटिव वर्क, so there is strain on tendons, and as a result of stress and strain, so tendon gets inflamed. So that inflammation, it's called tendonitis.
So tendinitis can occur in your shoulders, elbow, wrists, knees, and heels. Correct. So if you have this tendonitis, tendon inflammation for a long time, अगर आपने उसको ओवरलुक किया, सो दिस में रिजल्ट टू टीयर इन दिस टेंडन, टेंडन को वो डैमेज कर सकता है, टेंडन फट सकता है. उस दैट केस में उस वहाँ का सर्जरी ही एक एक मात्र उपाय है. राइट. तो सर्जरी इसको आपको करना पड़ेगा. अदरवाइज बेसिकली आपका रेस्ट दे करके, कुछ मेडिसिन दे करके और फिजियोथेरेपी के थ्रू ये इस तरह की बीमारी जो है वो एड्रेस की जा सकती है. एक टेनिस एल्बो, इट इज अनदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर. सो टेनिस एल्बो क्या है, बेसिकली जब टीटी खेलते हैं ना, तो उस दौरान होता है. तो बेसिकली जो फोर आर्म है, फोर आर्म में आपका यहाँ पर प्रॉब्लम होता है एल्बो में. ओके. सो जो टिश्यूज हैं और इसमें जो फोर आर्म में आपका इरिटेशन शुरू हो जाता है. am I audible? Yes. Okay. Yes. So this pain is the primary symptoms. Okay. So and it can be cured by the medicines and physiotherapy. So that is tennis elbow. तो बेसिकली टेनिस एल्बो तो होता क्यों है, अगर आपका बार बार रिपीटेटिव मोशन होता है, बार बार उसको आपको झटके लगते हैं किसी चीज से, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्समैन इन क्रिकेट और इन टीटी बैडमिंटन, so they are often suffer with this tennis elbow. So there is another disease that is called bursitis. So bursitis क्या होता है? अंबर ये इंटरेस्टिंग है, कुछ इसमें बोरियत तो नहीं हो रही ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ. एक्चुअली एर्गोनॉमिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को. तो बेसिकली बर्साइटिस को समझने के लिए, और जैसे शोल्डर में मैंने बताया आपको मसल्स, लिगामेंट, मसल्स एंड टेंडन्स. सो टेंडन्स और बोन्स को जो सपोर्ट करता है, अटैचमेंट होता है, तो वहां पर कुछ सैक्स होते हैं. दीज आर फिल्ड विद लिक्विड फिल्ड सैक्स. ओके. सो व्हेन दे सैक्स गेट इन्फ्लेम्ड, तो सेक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या वो फट जाते हैं, तो इंजरी हो जाती है. फटने को हम बोलेंगे इंजरी हो गया. तो बेसिकली दीज सेक्स आर कॉल्ड बर्सिया, बर्सी, नॉट बर्सिया, कुछ बर्सिया बोलते हैं, कुछ बर्सी बोलते हैं, BURSEA. तो दैट बर्सिया और बर्सिया दैट गेट इन्फ्लेम्ड. रीजन वही है कि अगर आपके ओवरहेड कुछ काम शोल्डर्स के ऊपर, अगर आपने हाइट पर कोई काम अगर आप खड़े होकर के कर रहे हैं और यहाँ पर आपके स्ट्रेन आ रहा है, सो बर्सिया दे में गेट इन्फ्लेम्ड. एंड ये भी पॉसिबिलिटी, अगर ज्यादा झटका लगा तो वो फट जाए. सो दैट डिजीज इंजरी इज कॉल्ड बर्साइटिस. तो ये भी रिपीटेटिव मोशन और वर्क प्लेस पर इंजरी कॉमन इंजरी है वर्कर्स के लिए. राइट. इसके अलावा लोअर बैक इंजरीज हो सकती है, just because of your poor posture, improper lifting techniques, okay, or long hours sitting without back or without back support. Okay. So herniated disc, it is another example of this lower back injuries. Sciatica, chronic back pain. Okay. Neck and shoulder strain. So बहुत common है neck and shoulder strain. Basically, if your screen, this is from this results from the, अक्सर करके जब आपका स्क्रीन का जो कंप्यूटर पर जो लोग काम कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर्स और ऑफिस में, सो स्क्रीन हाइट अगर ठीक नहीं है, आपके बराबर में लेवल में नहीं है, और पुअर मॉनिटर पोजीशन और प्रोलॉन्ग फॉरवर्ड हेड पोस्चर, अगर आप बार बार पीछे कर करके कर रहे हो या आगे कर करके झुक करके आप कर रहे हो, फॉरवर्ड हो, तो वो आपका एक कहना चाहिए ना, नेक एंड शोल्डर को स्ट्रेन आएगा ही आएगा.
सो उसके लिए ऑफिस में थोड़ा सा बहुत आजकल ये एर्गोनॉमिकली डिजाइन फर्नीचर आता है। आपका जो वर्क स्टेशन है, एर्गोनॉमिक आपकी Standing चेयर की desk. हाइट कितना है, किस तरह आपने बैठना है, और पैर आपके जो है वो फ्लोर पर पूरे रहना चाहिए। आपका प्रेशर है वो इक्वली थाइस पर रहना चाहिए। आपका आई आई मॉनिटर की पोजीशन जो आईज के पैरेलल रहना चाहिए। सो Right. दीज आर सम एर्गोनॉमिकल सॉल्यूशंस। इसके अलावा इफ यू आर वर्किंग फॉर a long time on computer, you may feel eye strain, visual fatigue. Okay. Similarly, if your workplace is not designed safely or ergonomically designed, so slip, trips, and falls, these are very common. Correct. So basically, you can say Right. that ergonomics mainly helps prevent repetitive strain injuries, postural issues, right? Cumulative trauma disorders. So, implementing good ergonomic practices significantly improves comfort at your workplace and definitely productivity also. It protects workers at one side. On the other hand, it gives increase in productivity. Okay, so these are some injuries I tried to explain up to my knowledge. Sure. Sure. Sir, can you give us a real world example of a company or job site that improved safety through ergonomic design? Okay, correct. So, Amber, there are many companies, but I remember there is a company that is Aluminium Company of America that is called Alcoa. So basically, Alcoa is a global leader in production of aluminium and metal products. So this company has long been recognized for its commitment to worker safety and operational excellence. So it is a brand. Okay. So basically, Alcoa launched a company-wide ergonomical improvement program. So the goal was actually they were facing issues related to this musculoskeletal disorders, right? So what they did, they redesigned their workstation. So whether the tasks which required repetitive motion or awkward postures, for example, overhead reaching or heavyweight lifting. So these were restructured. They identified, they conducted gap assessment, risk assessment, they identified the things and redesigned their workstation. Okay. Second thing, uh, they improved lift assist devices. So they installed mechanical lifting equipments rather they completely removed manual intervention and manual lifting of material. Okay. Second thing, uh, workers' involvement. Yes. So they trained their employees and they employees were asked for the suggestions and to participate. They were encouraged to participate in ergonomics program. Okay. Apart from this, they did some job rotations also. फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्क ज़्यादा टीडियस है तो कुछ इस वर्कर को 2 घंटे इधर लगा करके 2 घंटे बाद चेंज कर देना। सो जॉब रोटेशन Right. इट इज उन्होंने किया। ओके, सो रिजल्ट क्या हुआ, देयर वाज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंजरीज, significant reduction in injuries. So and also the more this productivity gains was there, more comfortable and safer workers. डेफिनेटली अगर आपका वर्कर्स का मोरल अच्छा है और आपका सेफली वहां पर काम कर रहे हैं, उनको फटीक नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा उसका, तो प्रोडक्टिविटी उसका Right. बढ़ा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज नंबर, उसका जो सीईओ है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि एक पैराडाइम शिफ्ट था इन पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में वर्कर्स के बीच में। उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हमारे बैठने के लिए, हमारा कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, एक एक चीज को उन्होंने एनालाइज किया अल्कोआ ने, और
Win-win situation. This was win-win situation for workers and management both, Right. right? So I think Alcoa is the best example. We all must learn from this. आजकल Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एर्गोनॉमिक्स पर ध्यान दें। बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। लोग इसको समझते नहीं है कि ठीक है, कहीं भी कुछ भी बैठ करके काम कर रहा है, किस पोजीशन में बैठा है नहीं देख रहा है, लेकिन वो शाम को जब जा रहा है, थका हुआ जा रहा है वर्कर या स्टाफ में भी करेक्ट ना। और क्या उसके साथ हो रहा है, Correct. उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसको एर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या शुरू हो गई है, वो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ओके So, sir, what role does ergonomics play in PPE design, which is personal protective equipment design? ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिजाइन। ओके ओके, Yes. सी Amber, a well-designed PPE must not only offer protection, but it also be reusable, wearable, and compatible. करेक्ट। मैं आता हूँ उस पॉइंट पर। सबसे पहली तो चीज ये है कि Right. कॉस्ट ऑफ पीपी इज वेरी हाई। तो मैनेजमेंट का सोचना ये भी होता है कि एर्गोनॉमिकली डिजाइन इस तरह हम लोग करें कि उसको हम बार बार यूज भी कर सकें और कंफर्टेबल भी रहे और कंफर्टेबल विद द टास्क और यूजेबल रहे, यूजफुल रहे। सो बेसिकली अगर पीपीज मेरे कंफर्टेबल नहीं है, फिट नहीं है, सो क्या होगा? सो इल फिटिंग पीपीज कैन कॉज प्रेशर पॉइंट्स। अगर अंबर आपने कभी जो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग पीपीज पहनते हैं, वो समझते होंगे इस चीज़ को। कई बार क्या होता है, अगर आपके पीपीज कंफर्टेबल नहीं है तो आपके दर्द होने लगता है, आपका हेलमेट पहनने में दर्द होता है, आपको गॉगल्स पहनने में दर्द होता है, वो प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम होता है। ये आपको रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है आपका, आप इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर सकते, आप अनकंफर्टेबल रहते हो, राइट। सो बेसिकली अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? आपके वर्कर्स इसको नहीं पहनेंगे ना। अगर आपका पीपीएस कंफर्टेबल नहीं है, फिट नहीं है, वो नहीं पहनेंगे, वो उसको अवॉइड करेंगे, है ना। तो Right. उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। ओके, सो बेसिकली कंफर्टेबल एंड फिट, दिस इज द पार्ट ऑफ एर्गोनॉमिक्स, करेक्ट। सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए Yes. आपका। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक पीपीएस पहन लिया, वो इतना हैवी है कि आपको वहीं का वहीं रह करके कर रहे हो, आप घूम ही नहीं पा रहे, आप जा ही नहीं पा रहे कहीं पर। मैं एक एग्जांपल देता Correct. हूँ, केमिकल इंडस्ट्री में या जहाँ पर अलग और भी इंडस्ट्री में हो सकता है कि फुल फेस मास्क होता है, हाफ फेस मास्क होता है, पूरा सूट होता है, एयर सूट होता है, पहन करके उसको काम करते हैं, बहुत हैवी होता है, उसको काम करने में मुश्किल आता है, पसीना आता है अंदर। और वर्कर्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो मास्क पहनाना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा ना, जब कोविड था, कोविड में क्या था, जो हम लोगों को मास्क पहनने में, आप 5 मिनट पहन सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मास्क पहनने में प्रॉब्लम आता था ना। लोग Right. इसको क्या करते थे, मास्क को Right. नीचे कर Yes. लेते थे, ना नाक बाहर निकाल लेते थे, मास्क को नीचे लटकाया हुआ है, करेक्ट। सो Yes. बेसिकली दिस रिजल्ट्स इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम इन मूवमेंट। आपका आपका वो लगा हुआ है और आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, वो पीपी आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहा है। तो उसके लिए क्या है? Right. एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था। खैर, मैं कोविड का तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, लेकिन जो मैं मास्क, ये केमिकल इंडस्ट्री में फुल फेस मास्क वाली बात कर रहा था, तो एर्गोनॉमिकली डिजाइन 3M का सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर्स है, बहुत लाइट है, यह PAPR होता है, पावर्ड एयर प्यूरिफाइड रेस्पिरेटर्स। जस्ट आप डालिए, आराम से काम करिए, 8 घंटे काम करिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंफर्टेबल, ना पसीना ना कुछ, वर्कर आराम से पहन करके काम करेगा, वो उसको लगेगा कि मैं पहनूं इसको, रादर देन अगर आप दूसरा पीपीए जो एर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं है उसको वर्कर उतार के फेंकेगा, लेकिन जो एर्गोनॉमिकली डिजाइन कंफर्टेबल है उसको वो पहनेगा। ये डिफरेंस है एर्गोनॉमिकल डिजाइन पीपीज में और एर्गोनॉमिकल डिजाइन जो नहीं है उसमें, राइट ना। सो डेफिनेटली Right. अगर एर्गोनॉमिकल डिजाइन है तो थकान को, और इवन अगर आप देखेंगे अंबर इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं है।
पीपीज अपने आप में पहनना एक सेफ्टी शूज, एक हैवी वेट होते हैं, उनको पहनना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। अगर वो लाइट वेट है, अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, तो आपको मूवमेंट में फ्रीडम है, आपको फटीग नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और वर्कर्स को आप प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, राइट। एंड अनदर थिंग इज एर्गोनॉमिकली डिजाइन पीपीज अगर आपका है, तो डॉनिंग डॉफिंग जो है, डॉनिंग डॉफिंग मीन्स उसको पहनना और उसको उतारना, वो भी आपका कंसीडर करना चाहिए उसको, डॉनिंग डॉफिंग को भी। अगर वो डॉनिंग डॉफिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा। आपने अगर ग्लव्स को दिया हुआ है, वर्कर को आपने ग्लव्स दिए हुए और वो ग्लव्स में उसका ग्रिप ही नहीं बन रहा है, उसको प्रोटेक्ट तो कर रहा है लेकिन अगर ग्रिप नहीं बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्लिप करके अपने आप को इंजर कर ले, इंजरी हो जाए, राइट। Right. So ergonomics plays a crucial role in designing personal protective equipments. Another example, if I talk about this goggles, so there are anti-fog coating goggles. So अगर आपका humid atmosphere है या जहाँ पर fog हो जाता है, तो वहाँ पर आपको anti-fog goggles देना चाहिए. That is ergonomically from the perspective of ergonomics, correct. अदरवाइज क्या है कि आपने नॉर्मल गॉगल्स उसको दिया है तो वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, वो एक्सीडेंट करा कर बैठेगा. So you can say that poorly designed PPEs maybe they are technically protective, but workers will definitely avoid wearing it and your purpose will not be solved. Am I correct? Right, right, sir. So this brings me to the next question. So, like you mentioned, that we should have the right ergonomics or ergonomically designed PPEs, right? So, I was thinking that it may cost money. Of course, it will cost money, right? So, how small and medium-sized business implement ergonomic improvements without a huge budget? Okay, definitely very good question, Amber. I give you an example. बहुत बहुत थोड़ा सा जस्ट आप यू कैन रिलेट विद दिस टॉपिक. अमर, मैं इंदौर में हूँ. इंदौर में इवन लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर क्लास के लोग हैं. हर बंदा एंजॉय करता है. वीकेंड पे आपको सारे रेस्टोरेंट्स फुल मिलेंगे, सारी स्ट्रीट्स फुल मिलेंगी, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, आपको वेटिंग मिलेगी. हर क्लास का बंदा एंजॉय करता है. अगर आपके पास जेब में 10 रुपए हैं तो 10 रुपए वाला भी बंदा एंजॉय कर रहा है, और आपके पास अगर 10,000 है तो वो वाला भी 5 स्टार में एंजॉय कर रहा है. कहने का मतलब ये है, इफ यू हैव अ कमिटमेंट, इफ यू रियली वांट टू डू, if you want to really want to make improvement in ergonomics at workplace design, so you can definitely do it. No one can stop it. ठीक है, मेरे पास जो बजट है उसको मैं कर सकता हूँ. बेसिकली बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साधन हैं जिसको मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ, करेक्ट ना. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. सबसे पहली चीज क्या है? एजुकेट एंड ट्रेन योर एम्प्लॉइज. उनको आप बताइए कैसे काम करना है. अरे उनको मालूम होना चाहिए कि स्टाफ को कि भाई किस तरह आपके कंप्यूटर के आगे काम करना है, आपकी कंप्यूटर का हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेयर कैसा किस तरह का होना चाहिए, करेक्ट. पहले चीज तो उन्हें मालूम होना चाहिए, वर्कर्स को मालूम होना चाहिए कि आपका लिफ्टिंग कैसे करना है वेट को, करेक्ट. सो एजुकेट और एम्प्लॉयज एंड ट्रेन योर एम्प्लॉयज. फर्स्ट थिंग कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है. सेकेंड थिंग, एडजस्ट योर एग्जिस्टिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स. आप उसको भी कर सकते हो. आपके जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर्स हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, आप रिपोजिशनिंग योर मॉनिटर्स, आप उसके नीचे कुछ अरेंजमेंट करके उसको मॉनिटर की हाइट ऊपर कर सकते हैं. उसमें कुछ पैसा नहीं लगता बहुत ज्यादा. Yes. ओके, यू कैन रीअरेंज योर वर्क स्टेशन. कुछ इस तरह देख सकते हैं जो कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है, जिसको आपके लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, आप पास में रख सकते हो उसके, Right. राइट ना. आपका बार बार रिपीटेटिव कहना चाहिए ना, बार बार जाने आने का चक्कर बचना चाहिए.
तो बेसिकली अभी मैंने किसी को सजेस्ट किया था कहीं पर कि भाई आपको इतना दूर आने जाने का करते हो, काम करते हो, बार बार आपको जाना पड़ता है अपने ऑफिस से, भाई एक साइकिल रख लो ना, बहुत सिंपल है। बहुत ज्यादा महंगा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, आप उनको जैसे मैंने बताया कि आपका पॉस्चर, सो एनकरेज डिजिटल पॉस्चर, उनको एनकरेज करें कि हाँ भाई सही पॉस्चर में काम करें, उनको बीच में आप टाइमली ब्रेक्स दें, ड्यूरिंग द वर्क उनको थोड़ा सा एक कल्चर डेवलप करें कहाँ स्ट्रेचिंग का, कि भाई हाँ आफ्टर एवरी 1 आवर और 1.5 आवर जस्ट ठीक है, एक 5 मिनट वॉक, एक 10 मिनट वॉक करके आओ, खड़े हो जाओ अपनी सीट पर और जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच करो बॉडी को। ओके, कुछ नहीं है तो जाकर के एक पानी का पानी पी करके आओ। टेबल पर पानी रखने के बजाय या पियल से पानी मंगने के बजाय आप जाकर खुद पानी पी करके आइए, है ना। सो इस तरह माइक्रो ब्रेक्स, स्ट्रेचिंग रूटीन, ये तो हम कर सकते हैं ना, है ना। आप मीटिंग्स को खड़ा होकर के रखो ना, आप बैठ करके मीटिंग क्यों कर रहे हो बॉस? भाई आप कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ, ठीक है, ओके, लेट्स हैव अ मीटिंग, आधा घंटे का मीटिंग, खड़े होकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, खड़े होकर के हम लोग बात कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। बैठने का जो आधे घंटे बैठने का तो वो खत्म हो गया आपका, है ना। तो इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है यहाँ पर जहाँ पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो लैपटॉप पे मेरे को क्या करना होगा, एकदम फॉरवर्ड झुकना होगा और आगे झुक करके मैं काम करूंगा, ढूंढूंगा। बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं 400-500 रुपए का ये कीबोर्ड में खरीद सकता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। कीबोर्ड में दे सकता हूँ, अपने वर्कर्स को माइक दे सकता हूँ ताकि कंफर्टेबल पोजीशन में वो बात कर सके या ये काम कर सके। करेक्ट। मैं एम्प्लॉय से बात कर सकता हूँ, कितने मैनेजमेंट में कितने लोग होते हैं जो इस चीज के बारे में बात करते हैं एम्प्लॉय से, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किस तरह आप काम कर रहे हो, किस तरह से आपका Yes. भाई हमारा कंसर्न होना चाहिए, एम्प्लॉय से मेरे को फीडबैक लेना चाहिए, है ना। एक कल्चर डेवलप करता हूँ ना घर में तो। और उसके अलावा अंबर, ठीक है, मैं मेरे पास मेरी छोटी कंपनी है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके हर साल में थोड़ा थोड़ा बजट लगा सकता हूँ। मैं हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये एरियाज है जहाँ पर ज्यादा एर्गोनॉमिकली इंसिडेंट्स होते हैं या यहाँ पर ज्यादा इंजरीज होती हैं, तो मेरे को यहाँ पर पहले इस चीज को मैं एड्रेस करूँ, जो हाई रिस्क एरियाज है उसमें स्लोली स्लोली मैं मूव करूँ। Right. So if you have commitment, you have your attitude is positive, then you can do this. Otherwise, मैंने बोला आपको इंदौर का एग्जांपल दिया था। आप इंदौरी जो है वो एंजॉय करते जानते हैं लाइफ को, वो एंजॉय करते हैं। 20 रुपए तो एंजॉय करेंगे, 2,000 रुपए तो एंजॉय करेंगे। राइट। Right. आर यू सेटिस्फाइड? ठीक कहा ना Makes मैंने? sense. ओके। Yes, sir. Yes, yes. Are there any specific tools or assessment models like REBA or RULA you recommend for evaluating ergonomic risks? Yeah, Amber, there are many tools for this. These are used in assessment of ergonomics, like RULA. That is RULA. RULA means upper rapid upper limb assessment. जो अपर लिम्स हमारा है, इसके लिए जो उसका असेसमेंट है, सो दैट इज कॉल्ड रूला। सो पर्पज इज टू असेस posture, फोर्स एंड रिपीटिशन ऑफ अपर लिम्स टास्क, जो भी अपर लिम्स की टास्क है वो उसको उसके लिए है। तो इट इज दिस इज रूला इज बेस्ट फॉर ऑफिस वर्क एंड for that task which involves arms, necks. Okay, so this is for assessment ruler, for upper limb assessment, rapid upper limb assessment, and another is RIBA, rapid entire body assessment. That is called RIBA. So purpose of RIBA is to evaluate whole body posture assessment during work task. ओके, पूरी बॉडी का ये असेसमेंट जब आप कहीं कोई काम वर्कर कर रहा है तो नॉट ओनली अपर लिम्स, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अपर लिम्स ही हमारा अफेक्टेड होता है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, साइटिका, हिप्स। ओके, सो इसके लिए भी असेसमेंट के लिए रेबा इज द बेस्ट, रैपिड एंटायर बॉडी असेसमेंट, REBA। ओके, इसके अलावा
नायोश लिफ्टिंग इक्वेशंस है, बहुत यूजफुल है. एक विशा विशा चेकलिस्ट इज देयर. So that is called Washington Industrial Safety and Health Act, Visha. So yeah, so Visha is for general ergonomics checklist, hazard for hazard identification, right? And apart this, there is another thing that is OSHA ergonomic assessment. ओशा की भी अपनी एक चेकलिस्ट है असेसमेंट के लिए. सो दीज आर सम टूल्स. स्ट्रेन इंडेक्स इज देयर. एंड उसके अलावा कुछ अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं. अगर आप देखें कुछ कंपनी है, इंटेंस आई एर्गोनॉमिक्स करके है, एआई बेस्ड है. एर्गो प्लस है. एर्गो प्लस ने रूलर सॉफ्टवेयर निकाला हुआ है. सेफ्टी कल्चर एर्गोनॉमिक सॉफ्टवेयर इज देयर. वाइव वाइव लैब एग्रो करके भी है. एर्गो वाइव लैब एर्गो. So this is another company. So there are softwares in market and there are systems in market. Yes, Amber. Got it. So, sir, what is the relationship between ergonomics and Yeah, productivity to save more ergonomic environment actually increase definitely. So it is very clear that it is very clear and well documented relationship between ergonomics and productivity. Safer, more ergonomic environment do increase productivity, do increase output. So there is a simple formula. Reduced fatigue and discomfort is equal to higher sustained output. Fewer injuries, right? injuries कम है, that is equal to fewer absence. आपके पास इंजरीज कम है, आपकी एब्सेंस कम होगी, एब्सेंटिज्म कम होगी. फटीग कम है, डिसऑर्डर डिस्कम्फर्ट कम है आपका, तो आउटपुट आपका ज्यादा होगा. ओके. या सो इसके अलावा अगर आपका वर्क प्लेस अच्छा है ना, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इनके आप देखिए ना, सो क्या होगा. सो दिट प्रोवाइड्स यू इम्प्रूव फोकस एंड बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस. ठीक है. And additionally you can have a higher moral and engagement with company, and these all related to your productivity. But productivity will definitely increase if any company works to improve this ergonomics situations. It is Right. directly proportional. Yes. Yeah. Yeah. Yes, yes, Happy yes, yes, employees yes, is yes. productive employees. So, sir, looking forward, what emerging trends or technologies do you see shaping the future of ergonomics in safety industry? Yeah. See, Amber, the future of ergonomics in safety industry is regularly being reshaped by a powerful combination of technology, data analytics, and human-centered design. Okay, so there are many solutions. There are many new things. For example, presently in present market, you can find this wearable ergonomic sensors. So these smart wearable like your waist belts, insoles, posture sensors, they real time monitor, and whenever there is a problem, they directly indicate this workman कि ये प्रॉब्लम है. अगर आपका posture गलत है वो बताते हैं आपको, right? So these are there. And apart from this, AI and computer based assessment. So basically in ergonomics, this risk assessment plays a crucial role. So AI based computer vision होता क्या है? Uh, AI powered cameras, you may provide AI powered cameras. Okay, so these are directly connected with your software. वो वर्कर्स का posture, motion रियल टाइम मॉनिटर करते हैं और वो आपका असेसमेंट बताते हैं. आपको करने की जरूरत ही नहीं है. सिमिलर वे में रूला रेबा का जो मैंने बात किया था, सो दीज आर ऑलरेडी एआई बेस्ड. Yes. ओके. सो टेक्नोलॉजीज और ये बहुत फॉरवर्ड हो रहा है. इसके अलावा अभी अमर एक चीज और है, अभी मार्केट में यू मे फाइंड दिस एडेप्टिव स्मार्ट वर्क स्टेशंस. सो दीज वर्क स्टेशंस कैन बी डिजाइंड एज पर योर दिस बायोमेट्रिक डेटा.
आपका हाइट, आपका वेट, अकॉर्डिंगली यू मे एडजस्ट दिस वर्क स्टेशंस. Got it. Okay. If you go to this YouTube, so at Herman Miller's Live OS करके है, Herman Miller's. So they have this very good adaptive स्मार्ट वर्क स्टेशन. बहुत अच्छा Right. लगा मेरे को, आप देखिएगा एक बार उसको. Sure. यस. और बेसिकली आपका इंडिविजुअल के बेस पर भी आजकल ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है कि आपका पर्सनलाइज्ड एर्गोनॉमिक बायोमेट्रिक डेटा लेकर के उसके उससे लेकर के आपका डिजाइन हो जाता है. So companies are doing in this direction. So I think it is a very upcoming field and very important going forward. So that brings us to the end of today's episode. A very big thank you to Vek sir for sharing such valuable insights on how ergonomics is shaping the safety landscape. If there's one takeaway from today, it's a safe workplace is an ergonomic workplace. Whether you're managing a job site or designing the next generation of tools, thinking ergonomically isn't optional, it's essential. Be sure to subscribe for more episodes where we spotlight people, policies, and innovation, making our work environment safer and smarter. And if you learned something today, share it with your colleagues or safety managers. Let's spread the word about smart safety. Until next time, take care and